Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our topic is sixth story, that is dusk. इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी किताब पर देखिए। क्वेश्चन 1 जो है इसका हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आपको किताब से उठाना है। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर एट हाइड पार्क। हाइड पार्क जो है ये लंदन में है, एक बहुत बड़ी पार्क है, एक मशहूर पार्क है लंदन की। तो वहाँ का हमें एटमॉस्फेयर बताना है। आप इसका आंसर लिखिए। द होल एटमॉस्फेयर, द होल WHOLE एटमॉस्फेयर ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर एट हाइड पार्क HYDE हाइड पार्क PARK was full of sadness, SADNESS sadness। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डस्की, DUSKY, full stop। It was an early March evening. It was an early 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 March evening 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 at around 6:30 6:30 बजे। And there was not completely dark, and there was not completely 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 dark 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 due to moonlight and street lamps and street 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 LAMPS street lamps though there was THOUGH there was an emptiness 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 means खालीपन। emptiness overroad OVER overroad and sidewalk means SID side WAL कंपाउंड वर्ड है। साइडवॉक मीन्स सड़क का किनारा, जिसको हम पटरी कहते हैं। साइडवॉक जिस पर लोग पैदल चलते हैं। even some people were WERE moving 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 here and there, here 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 and there। कुछ लोग यहाँ वहाँ जो है मूव कर रहे थे, here and there, while
WHILE, while others, were sitting, SITTING, were sitting on the benches, on the BENCHES, on the bench end, on the bench end, on the benches and chairs, CHAIRS, in the park, in the park, PARK, park. Their faces, their जो है THEIR, their faces, उनके चेहरे, their faces were WERE, hardly, HARDLY, visible, VISIBLE, hardly visible in the TV light, in the TWILIGIT, TV light, according, full stop, according, ए को कैपिटल लिखना है, ACCORDING, according to Gotesby, according to Gotesby, comma, it was the time of dejected, DEJECTED, it was the time of dejected and disappointed. It was the time of dejected and disappointed, DISAPPOINTED, disappointed. Dejected means sad, absurda, and disappointed means mayus, upset. People, PEOPLE, people who would come to, WOULD, who would come to such a place, PLAC, place, to enjoy ENJOY, to enjoy their, THEIR, to enjoy their solitariness, SOLITARINESS, solitariness. Solitariness means loneliness, तन्हाई, alone रहना. तो फिर से देखिए, ये क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, what was the atmosphere at Hyde Park? The whole atmosphere at Hyde Park was full of sadness, dusky. It was an early March evening at around 6:30, and there was not completely dark due to moonlight and street lamps.
though there was an emptiness, though there was an emptiness over road and sidewalk, even some people were moving here and there, while others were sitting on the benches and chairs in the park. Their faces were hardly visible in the TV light. According to Gotesby, it was the time of dejected and disappointed people who would come to such a place to enjoy their solitariness. So, according to Gotesby, it was the time of dejected and disappointed people who would come to such a place to enjoy their solitariness. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है मैं बताऊंगा, आप लिखिए. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका मैं आंसर बताऊंगा, आप लिखिए. उसको बाद में आप लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, question number 2 is, do the atmosphere and the mood at the park justify the title of the story? क्या ये एटमॉस्फेयर और मूड जो पार्क का है वो जस्टिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है टाइटल ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का टाइटल है डस्क, इसको वो जस्टिफाई करता है, ये हमें बताना है. तो देखिए, आप शुरू कीजिए, आप आंसर लिखिए. यस, YES, comma, the atmosphere and the mood, MOOD, mood of the park, PARK, park of the park, justify, JUSTIFY, justify means explain करना, किसी चीज को जो है सही ठहराना. justify the title, TITLE, title of the story, full stop. फिर देखो गोटिसबी, इसको आधे लोग गोटिसबाई भी पढ़ते हैं, नावन है, कुछ परवाह नहीं है. गोटिसबी, GORTSBY, नॉर्मन गोटिसबी जो है वहां बैठा हुआ था ऑलरेडी, पार्क में ऑलरेडी बैठा हुआ था. तो देख रहा है कि क्या हो रहा है पार्क में. मार्च का महीना है, लोग कम क्यों हैं? लोग इसलिए कम है पार्क में. ये बहुत मशहूर पार्क है लंदन की, हाइड पार्क. लोग इसलिए कम बैठे हैं क्योंकि मार्च का सर्दी का महीना है. लोग जो हैं ज़्यादातर बाजार में हैं, इस वक्त घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं. लेकिन बूढ़े लोग बेचारे जो हैं, जो डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड लोग हैं, वही इस वक्त इस पार्क में हैं. तो इसने पहले देखा, इस नॉर्मन गोटिसबी ने पहले एक बूढ़ी शख्स को वहां पर पाया. बूढ़ी को देखा, वो बिल्कुल जो है शबी कलोथुस, फटे कपड़ों में, पुराने कपड़ों में बैठा हुआ था. तो उसके जो कंधे थे झुके हुए थे, और बोर्ड शोल्डर थे उसके. तो उसने देखा कि जब वो निकला वहाँ से, फिर बाद में एक नौजवान आया, तो वो नौजवान जो यंग मैन वहाँ पर बैठ गया. तो देखिए गोटिसबी ने क्या किया, उसने नौजवान को देखा तो वो शरारत आमेज था, वो कुछ अपने आप से बातें कर रहा था. तो इसने इसका अटेंशन जो है, गोटिसबी का अटेंशन जो है अपनी तरफ माइल करना चाहता, खींचना चाहता था. तो गोटिसबी ने उससे पूछा, भाई क्या बात है, क्या हाल है, क्यों आप इतने परेशान क्यों हैं? तो उसने कहा कि मैं यहाँ का रहने वाला, उस नौजवान ने कहा, यंग मैन ने कहा, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ. आई एम फ्रॉम सम अदर कंट्री एंड आई हैव कम टू हियर फॉर सम वर्क और फॉर विजिटिंग दिस कंट्री, दिस सिटी. तो यहाँ पर जब मैं आया तो होटल में जिस होटल में बैठा करता था, तो उस होटल की जगह थिएटर बन गया है.
अब मैं किसी दूसरे होटल में गया, वहाँ बैठा, तो वहाँ से मुझे जो है एक साबुन की टिकिया लाने के लिए, एक केक ऑफ सोप लाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। जब मैं बाहर गया, बहुत दूर चला मैं, तो जब वो साबुन की टिकिया मुझे मिली, तो अब मैं भूल गया कि वो होटल कहाँ है, क्योंकि नए शहर में था, नए मुल्क में था, तो मैं भूल गया वो होटल कहाँ है। अब मुझे उसका एड्रेस भी मालूम नहीं था। तो चाहता था कि ये आदमी जो यहाँ पर बैठा हुआ, ऑलरेडी बैठा हुआ है, ऑलरेडी बैठा कौन था, ऑलरेडी वहाँ पर नॉर्मन गोटिस भी था, तो उससे कुछ मदद लेना चाहता था, इकोनॉमिक हेल्प, कुछ रुपये उसे लेना चाहता था। तो उसने कहा, लेकिन स्ट्रेंजर था। तो हमें यहाँ से एक इस लेसन में, इस स्टोरी में हमें कुछ जो है बहुत सी जो है अच्छी बातें मिलती हैं नसीहत की। तो पहली बात जो है कि क्या हमें स्ट्रेंजर्स पर भरोसा करना चाहिए, क्या हमें स्ट्रेंजर्स पर भरोसा करना चाहिए। आप स्टूडेंट से कल पूछा जाएगा, कल मैं पूछूंगा इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको, कि क्या हमें स्ट्रेंजर्स जो हैं उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी आपको रीज़न देनी पड़ेगी। तो इस लेसन से हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये स्ट्रेंजर था, ये यंग मैन गोटिस बी के लिए एक स्ट्रेंजर था, तो उसने जो है उसकी हेल्प चाहता था, लेकिन गोटिस बी भी बहुत चालाक था। लेकिन उसने कहा कि वो साबुन की टिकिया कहाँ है, कहा कि वो साबुन की टिकिया वो ढूंढने लगा, कोट में ढूंढने लगा, जेबों में ढूंढने लगा, तो वहां पर वो साबुन की टिकिया नहीं मिली। तो कहा कि वो भी मैं खो चुका हूँ, वो भी कहीं पर मुझे जो है गुम हो गई है। उसने कहा, भाई इतनी अजीब आदमी हो आप, एक तो आपको होटल का नाम भी आप भूल गए, दूसरा आप जो है ये आप साबुन की टिकिया भी खो गए, इतना बेहस क्यों हैं आप। तो उसने कहा कि अब क्या करूँगा मैं, न मेरे पास कुछ पैसे हैं, पैसे भी वहीं रह गए, न कुछ मेरे पास है। तो इसी तरह से उसने उसकी हेल्प नहीं की। उसने स्ट्रेंजर समझा, उसने कहा इसकी हेल्प, ये कुछ धोखेबाज आदमी है, तो साबुन की टिकिया इसके पास नहीं है। तो ये जा निकला, कौन, ये यंग मैन जो है वहाँ से जा निकला। तो जब ये थोड़ी दूर गया, तो अचानक इसकी नज़र बेंच के नीचे पड़ गई गोटिस बी की। उसने वहाँ पर साबुन की टिकिया देखी। अब ये साबुन की टिकिया किसकी है, आप स्टूडेंट से मैं पूछना चाहता हूँ, ये किसकी है, ये यंग मैन की है ना, लगता है ना यंग मैन की है। तो इसी तरह इसको भी लग गया, ये भी धोखा खा गया। तो गोटिस बी को लग गया कि ओह मैंने बहुत भूल की, मैंने जो है गलती में उस पर भरोसा नहीं किया। तो बेचारे ने यहाँ जो उसकी साबुन की टिकिया वहाँ यहाँ पर है, केक ऑफ सोप जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो उसने उठाई, तो भागा उसके पीछे, उसको कहा हेलो हेलो ठहरो, उसको रोक लिया और वहाँ कहा कि मुझे माफ़ करना, ये ले लो आपकी साबुन की टिकिया वहाँ पर बेंच के नीचे पड़ी हुई थी, तो आप ये ले लीजिए और आप एक काम कीजिए कि ये जो है ये पैसे ले लो, फिर जब आपको कभी बने मुझे वापस करना। तो उसकी पूरी हेल्प, उसको पैसे दिए, हेल्प की। लेकिन वहाँ से जब ये वापस मुड़ा गोटिस बी, तो क्या देखा बेंच के उसी बेंच के पास एक बूढ़ा आदमी, वो ही पहला बूढ़ा आदमी कुछ ढूंढ रहा है। जब ये वापस आया तो ढूंढ रहा है, उसने कहा बूढ़े आदमी से, भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं, बुजुर्ग आदमी आप क्या ढूंढ रहे हैं। कहा कि मैं बेटा मैं यहाँ पर साबुन की टिकिया भूल गया हूँ। वो साबुन की टिकिया किसकी थी, बूढ़े की। आपने अभी कहा वो यंग की थी, वो साबुन की टिकिया किसकी थी, असल में वो बूढ़े आदमी की थी। तो यहाँ पर गोटिस बी को जबरदस्त धोखा लग गया, वो पहचान नहीं सका उस स्ट्रेंजर को, यानी वो स्ट्रेंजर झूठ बोल रहा था, उसकी बातें झूठ थी। तो यहाँ पर क्या निकला कि हमें स्ट्रेंजर्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो असल में साबुन किसकी थी, बूढ़े आदमी की। तो ये स्टोरी है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर हम पहुंच रहे हैं, आप जल्दी से लिखिए उसको। तो कहाँ पर पहुंचे हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज गोटिस बी द प्रोटोगोनिस्ट, वर्ड है PROTAGONIST, प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स लीडिंग कैरेक्टर, प्रोटोगोनिस्ट मीन्स लीडिंग कैरेक्टर, जिसको हम हीरो भी कह सकते हैं, किसी कहानी या ड्रामे का असल किरदार। यानी इस स्टोरी का असल किरदार कौन है, गोटिस बी है ना। तो उसको प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं ऑफ द स्टोरी, कॉमा defines DEFINES, defines dusk, DUSK dusk as, अंडर कॉमा देखिए आप, the hour HOUR, hour of the defeated, DEFEATED, कॉमा को क्लोज कीजिए, he
he has appropriate देखो appropriate appropriately ly appropriately appropriately means properly मुनासिब तौर पर portrayed 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 means described portrayed portrayed means described और characterized हाँ portrayed लिखी ना portrayed portrayed the atmosphere 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 of the story by using words words like march march m को कैपिटल लगाएं march evening evening march evening comma dusk dusk comma wide emptiness wide wide emptiness wide emptiness comma half light half dash light half light comma gloom 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 etc etc full stop the mood 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 has been harmonized 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 by comparing comparing it to the hour of dejected dejected to the hour of dejected full stop thus thus comma dusk is not only on the physical physical level but level but on the mental mental and spiritual spiritual mental and spiritual levels levels as well full stop fallen f कैपिटल लिखना है FALLEN fallen fortunes FORTUNES fallen fortunes में टूटी हुई किस्मत fallen fortunes FORTUNES comma dead hopes comma bowed 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 shoulders 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 and unhappy 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 eyes EYES of the dejected 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 and means sad and disappointed upset disappointed DISAPP आपसे नहीं लिखना है disappointed dejected and disappointed 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 people 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 present in the park PRESENT present in the park ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको घर पर ट्राई लेना, याद करना।